Hello students, welcome back to my channel. Today I'm going to study, we are going to study Animal Kingdom chapter 3 Animal Classification, that is for class 7 ICSE Understanding Biology. Shruti Agrawal, Sarita Agrawal and Shruti Agrawal, the same chapter. Last video I have told you about the kingdom Animalia. Now here we proceed with the animal kingdom, animal classification. Classification of animals, that is called animal kingdom classification. As you know already, जैसा कि आप सब जानते हैं, kingdom Animalia, it includes organisms which are multicellular, they do not have chlorophyll, and they have heterotrophic nutrition. Means they are multicellular, they do not have chlorophyll, and they have heterotrophic mode of nutrition. 3 points are there. First, multicellular. Second, do not have chlorophyll. And third, heterotrophic mode of nutrition. And cells do not have a cell wall. Means do not have cell wall absent. What does it mean? Cell wall absent. Now, kingdom Animalia, it is divided into two classes, invertebrates and vertebrates. Now, this is the animal kingdom. It is divided into two. Invertebrates means do not have backbone. Vertebrates means they have the backbone. Invertebrates and vertebrate. अब इसी में जैसे invertebrates, they have no vertebrates, they have the backbone. They are further divided into the smaller groups. They are called as phyla or phylum, singular. Phylum is singular, phyla is, it is plural. They are graded in, now further they divided into orders, class, order, genera and species. The vertebrates, they are divided into, they have backbone, they are divided into 5 classes. Now we will study one by one each one. Now first, the invertebrate. Now invertebrates, those which do not have vertebral column, जिसमें vertebral column नहीं होते, they do not have backbone. Backbone, vertebral column एक ही चीज है बेटे. They are the one and the same thing. So it is a large group of the animals which can be found. They are found on land, in water bodies and in the air. मतलब land में भी मिलते हैं, water में भी है और air में भी है. They are present everywhere over there, land, water as well as in air. Now this group, it is divided into 8 phylums. First phylum, Porifera. Pori means pore, pore bearing organisms. So sponges, as you know, sponges, they are aquatic animals, means lives in water, found in sea water. Porifera सारे sea water में, पानी में होते हैं, aquatic animals हैं और ये sea water में पाए जाते हैं. They do not have move, they are attached to the stratum. ये move नहीं करते हैं. And they are attached to the sides of the bottom on the ocean. ये attached to the surface of the, ये समुद्र के नीचे तलहटी में जो होते हैं, नीचे उसके बेस में जो होते हैं, ये attached होते हैं. They have a hollow cavity called spongocoel. जैसे ये स्पॉन्ज है, इस स्पॉन्ज के अंदर ये हॉलो कैविटी होती है, ये सेल्स होते हैं, ये हॉलो कैविटी होती है. इस हॉलो कैविटी जो अंदर खाली होती है, इसको स्पॉन्जोसील कहते हैं. और ये पोर्स होते हैं, पोर्स से पानी अंदर जाता है, यहाँ से पानी अंदर आता है और इस सभी पोर्स से अंदर आके और यहाँ से पानी बाहर जाता है इसमें. तो ये कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें. ऑस्कुलम, वाटर गोज इन थ्रू द पोर्स एंड कम्स आउट थ्रू द ऑस्कुलम. ये ऑस्कुलम है, पोर्स से पानी अंदर जाता है. यहाँ सभी जो ये पोर्स हैं, ये इन सब से जो है वाटर अंदर आता है और वाटर के साथ है. और इसी के साथ जो वाटर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसी से यहाँ पे ये जो फ्लैजिला होते हैं इनके सेल्स में, अंदर की तरफ जो लेयर होती है, फ्लैजिला होते हैं, उसी से जो फूड होता है ये अपना एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये पोरिफेरा एग्जाम्पल, साइकन पोरिफेरा, ल्यूकोसोलोनिया होता है. ये सिंपल डायग्राम साइकन का होता है, स्पॉन्जिला, दे साइकन स्पॉन्जिला एग्जाम्पल. Aquatic, found in water, attached to the substratum. They have a spongocoel cavity. Pores are present in the water. Water enters through the pore. मतलब एक pores होते हैं. Water enters through pore and comes out through the osculum. अब नेक्स्ट फाइलम आता है नेडेरिया. इसको पहले सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं, अभी जो है इसको मॉडर्न इसमें इसको नेडेरिया है. ये भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ओशंस में होते हैं,
एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ओशंस में पाए जाते हैं। इसके अंदर की कैविटी, जैसे ये कैविटी है, इसको सीलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं। इसमें एक माउथ होता है। वाटर गोज एंड कम्स आउट थ्रू द माउथ से ही पानी उसमें अंदर जाता है और बाहर आता है। माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स एंड दे हैव स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, नीडोब्लास्ट। यहाँ पर सेल्स जो पॉरीफेरा में एक ही तरह के सेल्स है। नीडे में डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 8 तरह के सेल्स मिलते हैं जो कि 8 अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर स्टिंगिंग सेल्स नीडोब्लास्ट होते हैं, जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है, कोरल्स है, सी एनिमोन है। ये देखिए, जैसे ये हाइड्रा है, इसके अंदर की जो कैविटी है सीलेंट्रॉन, यहाँ पर ओपनिंग माउथ होती है। इसमें आप ये देखिए, ये टेंटिकल्स होते हैं। इसका माउथ जैसे आप ये देख रहे हैं, इसके बीच में ये जैसे ये गोल है तो इसके चारों तरफ से ऐसे टेंटिकल्स होते हैं और बीच में माउथ होता है। यहाँ तो ये माउथ होता है और इसके वॉल्स में ये जो सेल्स होते हैं, एक आउटर लेयर, इनर लेयर। इनर लेयर में सेल डिफरेंशिएशन होता है। इसमें 8 तरह के, मींस इन दिस द सेल डिफरेंशिएशन स्टडी। जैसे इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स से पानी पॉरीफेरा में अंदर जाता है, सीलेंट्रॉन से बाहर निकलता है। इसमें क्या होता है, पोर्स खत्म हो जाते हैं और जो सेल्स जो होते हैं स्पेसिंग नाइडेरिया, क्योंकि नीडोब्लास्ट सेल होते हैं, मतलब जो कोई आता है उसका जो फूड आता है तो ये उसको पैरालाइज कर देते हैं और पैरालाइज करके धीरे धीरे वो बॉडी में एब्जॉर्ब है। अगला फाइलम आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थ मींस फ्लैट वर्म, जैसे फ्लैट वर्म आपका टेप वर्म इसका एग्जाम है। इसमें क्या होता है, अब ये एनिमल, ये पैरासाइट्स होते हैं। दे आर अनसेगमेंटेड बॉडी विच कुड बी लीफ लाइक और रिबर लाइक, मतलब कुछ में लीफ लाइक। टेप वर्म तो आपका टेप वर्म बॉडी है, ये आपका स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, लेकिन जो अदर बॉडी होती है जैसे स्पिंडल है, फैस्कुला हिपैटिका, जैसे टेप वर्म द ह्यूमस लिवर फ्लूक इज ए पैरासाइट, लिवर ऑफ स्लीप होता है। लेकिन फ्लैट वर्म होते हैं जो कि कुछ में लीफ लाइक बॉडी भी होती है, जैसे लीफ लाइक बॉडी होती है, ये आपको मैं दिखाऊंगा, ऐसे होती है, ऐसे लीफ लाइक यू बॉडी होती है और ऐसे यहाँ पर ये इसके मुंह हेड होता है। तो ये लीफ लाइक ये बॉडी होती है, पूरा अंदर से बहुत पतला होता है, एकदम रिबन की तरह होता है, जैसे लीफ पतली होती है उसी तरह से पतला लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है। इसका इनकम्प्लीट, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, तो इसलिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे लोकोमोशन के लिए होते हैं। और फ्लैट वर्म्स हैं जनरली ये पैरासाइट्स, मतलब ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से वर्टिब्रेट से डिराइव करते हैं। कुछ जो है वो फ्री लिविंग भी होते हैं और कुछ जो है वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अगला फाइलम आता है निमेटोडा। निमेटोडा मीन्स राउंड वर्म। इसमें क्या होता है, राउंड थ्रेड लाइक होते हैं, जैसे ये थ्रेड लाइक होते हैं, पतला। ये बॉडी, इसके आफत जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है, बाहर से आप इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं। अनसेगमेंट, इसमें जैसे इसमें सेगमेंट्स है, इसमें सेगमेंट नहीं होते, ये देखिए प्लेन सरफेस होते हैं। इसमें भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, माउथ होता है, एनस होता है, लेकिन अभी पूरा नहीं बना होता है। ये भी जो होते हैं, ये माउथ से जो है पैरासाइट बॉडी जो होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं और होस्ट की बॉडी से फूड एब्जॉर्ब। मींस मेन कैरेक्टरिस्टिक राउंड अनसेगमेंटेड ट्यूब लाइक बॉडी, दे हैव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गन फॉर लोकोमोशन, खाली ये हुक्स होते हैं जिससे अटैच्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे आर पैरासाइट, दे काउंट इन वाटर एंड सॉइल आल्सो। एस्केरिस, ये ह्यूमन पैरासाइट्स है, छोटे बच्चों में हो जाते हैं, जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो गए तो ये यही कीड़े होते हैं, टेप वर्म और हुक वर्म्स होते हैं स्पेशली, या पिन वर्म है, फाइलेरियल वर्म है, ये सारे पैरासाइट्स जो होते हैं ये एग्जाम्पल्स है बेटा। पिन वर्म, हुक वर्म, फाइलेरियल वर्म, ये है राउंड वर्म, इसको एस्केरिस बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं। एनिलिडा, एनिलिडा एनुलस मतलब रिंग लाइक बॉडी, इसमें सेगमेंट्स होते हैं। ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये अंदर की तरफ भी होते हैं और बाहर की तरफ भी। अगर इसकी स्किन को ओपन करेंगे तो इसकी आउटर लाइन और इनर लाइनिंग दोनों में जो है आपको सेगमेंट्स दिखाई देंगे। सेगमेंटेड लॉन्ग वर्म लाइक बॉडी, दे हैव ए ट्रू बॉडी कैविटी, और इसमें फाइन ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लोकोमोशन के लिए। सीटी होते हैं जो फाइनल, ऐसे जो ये सेगमेंट है इसमें ऐसे ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स हर सेगमेंट में होते हैं, दे आर नोन एज सीटी
and they help in locomotion. सिटी होते हैं ब्रिसलाइज एंड दे हैव ए स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रिडिया. एग्जांपल अर्थवर्म लीच. ये बॉडी से डायरेक्ट लीच जो है, जिसे हिंदी में कहते हैं जोंक, जो एनिमल्स की बॉडी में चिपक के ये डायरेक्ट ये ब्लड सक करती है. अगला फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग, पेयर्स लेग्स होते हैं. आर्थ्रोपोडा में एनिमल्स दे हैव जॉइंटेड लेग्स and they are used for locomotion. Body is divided into three parts: head, thorax and abdomen. ये important characteristics है phylum Arthropoda. Body is divided into head, thorax and abdomen and they have paired appendages, यानी कि joint legs होते हैं 3 paired. And body is covered joint exoskeleton chitin का present होता है. Large group में इसको further 3 सब class में divide किया गया है. आपके लिए तो अभी बस इतना ही है. जैसे क्रैब, स्पाइडर है, सेंटिप, कॉकरोच. जैसे हाउस फ्लाई आप देखते हैं, हाउस फ्लाई, ये देखिए हाउस फ्लाई जो बहुत कॉमन देखते हैं, ये हेड है, ये थोरेक्स है, ये एब्डोमेन है. ये जॉइंटेड मतलब 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स आर प्रेजेंट. 1 2 3 1 2 3 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड थोरैक्स और ऊपर ये काइटिन प्रेजेंट होता है. ये 3 मेन स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं और आपको एग्जांपल याद रखना है. Body is divided into head, thorax and abdomen. They have paired appendages, jointed legs. They have jointed legs and an exoskeleton made up of chitin. Head, thorax and abdomen and they have jointed legs. और ये आपको examples, बस इतना याद रखना है. नेक्स्ट आता है आपका फाइलम मोलस्का में सॉफ्ट बॉडी. इसमें क्या है? बॉडी बाहर से कवर्ड होती है स्केलेटन, जैसे सीपिया, सीप, मोती होते हैं ना, उसमें जो एनिमल्स होते हैं, पाइला है, यूनियो है, जिसके अंदर मोती बनता है. इसमें सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी होती है. ये सी एनिमल्स होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं. बॉडी इज कवर्ड, सॉफ्ट बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड शेल. सॉफ्ट बॉडी जो है हार्ड शेल से कवर होती है. सेल एक पीस में भी हो सकता है, जैसे कि स्नेल में होता है, या जैसे ऑक्टोपस सेल इनसाइड देयर बॉडी, या तो मतलब बॉडी जो है शेल से कवर्ड होती है, बॉडी सॉफ्ट होती है. बॉडी डिवाइड इनटू हेड, विसरल मास एंड फुट. लोकोमोशन मस्कुलर फुट से, जैसे स्नेल, ऑयस्टर, ग्रुप. मेन कैरेक्टर सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी. सब बॉडी इज कवर्ड बाय ए हार्ड सेल. ये बॉडी इज कवर्ड बाय ए हार्ड सेल, बस इतना ही आपको याद है. एनिमल्स हैव सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हेड, विसरल मास एंड फुट. लोकोमोशन इज बाय मस्कुलर फुट. एग्जाम्पल स्नेल, ऑयस्टर एंड ऑस्ट्रिच. ये देखिए, ये आपका स्नेल है, ये हार्ड शेल है, ये बॉडी है, ये हेड है, ये टेंटिकल्स है, ये बॉडी है, फुट है. इससे मूवमेंट होता है. जैसे ही कोई डेंजर खतरा देखता है तो तुरंत बॉडी करके बॉडी इसको एकदम से सिकुड़ करके बॉडी शेल के अंदर आ जाती है. ऑक्टोपस, इसमें हेड होता है, ये आर्म सकर्स होते हैं, ये थोड़ा जेलस होता है, बहुत स्लिपरी होता है, इजिली आप पकड़िए तो हाथ से स्लिप कर जाएगा. स्लिप by the animals so that animals cannot eat. और ये अंदर गहरे पानी में होते हैं, समुद्र में होते हैं. फाइलम एकाइनोडा, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं. इनके स्किन में स्पाइंस होते हैं. स्काइन दैट इज मेंट फॉर द प्रोटेक्शन. जनरली दे आर द स्पाइनी स्किन एनिमल्स. बॉडी कवर्ड विद द स्पाइंस और प्लेट्स में होती हैं. रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि सेंटर से थ्रू आप कहीं से रेडियली सिमेट्रिकल काटेंगे, गोल होते हैं तभी तो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे. बॉडी स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, स्टार शेप. ये देखिए स्टार शेप. स्टारफिश है, इसीलिए नाम है स्टारफिश, क्योंकि ये स्टार की तरह है. ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है. लोअर साइड में ये देखिए ट्यूब फीड होती है और इस ट्यूब फीड से और ऊपर जो है वो स्पाइंस होते हैं. ये माउथ ओरल नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में. ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड में सेंट्रल में इसमें माउथ होता है. लोकोमोशन बाय सी एनिमल्स, दे आर स्पाइनी स्किन्ड इन देयर बॉडी कवर्ड विद स्पाइंस. दे हैव अनसेगमेंटेड रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी. लोकोमोशन इज बाय ट्यूब फीट. ये ट्यूब फीट होती है. ट्यूब फीट एक्सक्लूसिव मैरीन एनिमल्स, स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार. ये अब हम इसमें आते हैं वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स दे हैव द वर्टिब्रल कॉलम. नर्वस सिस्टम that is well developed, consists of brain and spinal cord. Brain is protected by a structure called a cranium. Brain box होता है, उससे करते हैं. They are efficiently circulatory system includes heart, pumping organ, respiration by gills और lung. Aquatic animals में gills से respiration होता है और aerial animals में lung, जैसे human में. और locomotion fins या feet
फीट से जो अर्थ पे रहते हैं उनमें होता है, फिन्स पे एक्वेटिक एनिमल। अब इसका जैसे पहला आइलम है पाइसेस, फिश। इसमें क्या है, ये एक्वेटिक एनिमल्स फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द ओशंस। एनिमल्स फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसको ये कहते हैं, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीम जैसे स्ट्रीम होती है ना, यूं लहरें चलती हैं जैसे यूं करके, इस तरह से बॉडी होते हैं। कार्टिलेजियस बोन्स, दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, फिन्स फॉर लोकोमोशन, शार्क, रोहू, कैटला। They are aquatic, streamlined body. Body is covered with scales. Skeleton is cartilaginous. Gills for respiration. Fins for swimming, balancing, or locomotion. Shark, rohu, catla. Amphibians. Amphibians, they live both on land as well as in the water. They have smooth, slimy, and moist skin. They have 2 limbs, forelimb, and hind limb. Respiration by gills, tadpole stage. एंड इन लंग्स, मतलब जब ये इसका टैडपोल स्टेज में जो होता है वो एक्वेटिक होता है, और एडल्ट जो होता है वो क्या होता है, वो अर्थ में रहता है, मतलब ये उसमें अर्थ में रहता है, अर्थ के ऊपर रहता है, एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक लार्वा होता है, और लिव्स ऑन द अर्थ, टैडपोल। ये पानी, और उसमें जब पानी में रहता है तो ये स्नाउट ऊपर करके लंग्स से रेस्पायर करता है। जो टैडपोल टोटल एक्वेटिक होता है वो किसे, टोड, टोड टोटली लिव्स ऑन द अर्थ। अब अगला आता है आपका रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स दे आर अडेप्टेड टू लिव इन द लैंड, जैसे छिपकली है, सांप है, ये कुछ जो है इसमें एक्वेटिक होती है। बॉडी इज कवर्ड विद ये स्केल्स, बॉडी स्केल से कवर्ड होती है। 2 पेयर, फोरलिम, हाइंड लिम, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है। रेस्पिरेशन बाय लंग, भाई जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पे सरफेस पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल जो अर्थ पर रहते हैं उनमें सब में रेस्पिरेशन जो है वो लंग से होता है। ये 4 लिम्स, ये हैंड लिम, ये स्किन, ये हेड है, ये आईज है, ये स्नाउट है, ये टेल है, ये ट्रंक है, बॉडी का है। ऐसे ही रेप्टाइल्स हैं, स्केल्स होते हैं, लिजर्ड। बर्ड्स, दे आर अडेप्टेड टू फ्लाई इन द एयर, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी कवर्ड विद फेदर। आपने देखा जितने भी पक्षी बर्ड्स होती हैं, दे हैव बीक, दे हैव फेदर्स, विंग, लेग्स, हाइंड लिम्ब। 4 limbs आर, ये 4 limbs मॉडिफाइड इनटू विंग्स, 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। लाइट एंड पोरस बोन्स सो दैट दे कैन फ्लाई। एयर कैविटी, बोन्स हल्की होती हैं, इनमें एयर स्पेसेस होते हैं जिससे कि ये उड़ सके। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, स्पैरो, पिजन, पेंगुइन, डक, आप सब देखते हैं बर्ड। लास्ट वन इज योर मैमल। मैमल्स, मोस्ट एडवांस ह्यूमन बींग्स, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं बच्चों को दूध पिलाने के लिए। बॉडी इज कवर्ड विद हेयर, 2 pairs are limb, 4 limbs and hind limbs, 4 limbs or hind limbs. Body is covered with hairs, they have mammary glands so that they can give their milks to their puppy young ones. Respiration by, let's see, humans and cat. Mammals, body is covered with hair, they have 4 limb and hind limb, they have mammary glands. Respiration by lungs, right? They give birth to young ones, so they have mammary glands to feed their babies. Body is covered with hair, they have 2 pairs, 4 limbs and hind limb. Respiration by gills. Example, cat, dog, giraffe, cat, dog, and जितने भी आप अर्थ सरफेस देखते हैं terrestrial animals, they have it here. So here this you can key term. Amphibians, animals that can live both in land as well as in water. Aquatic animals that live in water. Nidoblast, spacer stinging cells present in phylum Cnidaria. Coelentron, a hollow cavity present in phylum Cnidaria. Cranium, a hard structure that protects the brain. Invertebrates, animals without a backbone. Osculum, large opening present in sponges. Spongocele, a cavity present in sponges, phylum Porifera. Vertebral column, another name for backbone present in all vertebrates. Vertebrates, animals with a backbone, right? अब इसमें जैसे इंपॉर्टेंट वर्टिब्रेट्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स कितने हैं ग्रुप? पोरिफेरा, पोर बियरिंग, मोस्टली फाउंड अटैच्ड ऑन द रॉक्स, स्पॉन्जेस. नाइडेरियंस, दे हैव अ सेंट्रल होलो कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील and stinging cells called nidoblast, hydrogel. Platyhelminthes, unsegmented, thin and flat body, tapeworm. Nematodes, unsegmented, round and elongated body, known as ascaris. Annelids, segmented, round and elongated body, earthworm. Body with jointed legs, prawn and crotch. Soft body covered with a hard shell, snail and oyster. Spiny skinned animals have 2 feet for locomotion, starfish, ये आपका
calyms. Group vertebrates, animals which have black bone, they are classified into 5 important groups. Pisces, adapted to live in water, bodies covered with scale, respiration by gills. Rohu and shark. Adapted to live both on land and water, slime and moisture skin, respiration by lungs and skin. Example, frog and toad. Reptiles, adapted to live on land, dry scaly skin, respiration by lungs. Lizards, जैसे आपकी छिपकली है, गिरदाना है, ये सब होता है ना, पेड़ों पे होता है. Aves है birds, adapted to fly in the air, body covered with feathers. Pigeon, respiration by lungs. Mammals, they have mammary glands, body covered with hairs, respiration by lung. Animals with a hollow cavity and mouth surrounded by tentacles, Cnidaria. Earthworm is an example of Annelida. Animals of phylum Echinodermata, they had spiny skinned body. Vertebrates with moist and slimy skin, amphibia. Mollusk, sea urchin. These all questions I have already discussed you. This you can see and mark. Quickly you can take the photograph, you can add it, and the examples, differences, all you can get it over there. Thank you. Again, we will meet in the next video with more important topic. You have any doubt anywhere, please ask me in the comment section. I will answer your question definitely. Thank you.